Welcome to Viti Pathshala. In this class, we would be going to study about the third part. So this would be the third lesson that we would be going to do of the fifth chapter. This is not fourth, fifth chapter of the monetary economics. And today we would be doing, this is the last topic, part 3 that we would be going to cover. Now 12th class economics TNSCRT we were doing. So if we talk about the last class, we have completed the topic. In the part 1 we have completed the topic like the introduction, money and the supply of the money. Then few topics of the inflation yesterday we have completed in the part 2. Now in the inflation we have completed meaning of the inflation, what are the types of the inflation, yesterday we have completed. Then causes of the inflation we have studied, effects of the inflation we have studied. Now we would be studying today about the measure to control the inflation. What is the meaning of the deflation, disinflation, stagflation? What do you mean by trade cycle? Meaning and the phases of the trade cycle. So let us directly move to the first topic that we would be going to do today is the measures to control the inflation. So क्या क्या तरीके हैं जिससे कि इन्फ्लेशन माने जनरल टर्म्स में हम बोलें तो इट इज़ महंगाई, और in the simple English term if I say it is the general price rise. Now what are the ways to control the inflation? Now Keynes, you have studied this person in n number of times, and the Milton Friedman. Now Milton Friedman, together they suggested 3 measures to prevent and control the inflation. Now what are these 3 ways of controlling the inflation? Now these are monetary measures. So remember always that the monetary, it is in the hands of the central bank of a nation, whereas the fiscal measures are taken by the government. Now there are also other measures. Now first we would be going to study about the monetary measures. Now remember, these monetary measures are adopted by the central bank. I told you now central bank of the country. Now what are these monetary measures? Now they are the increase in the bank rate. So किसकी बात कर रहे हैं? बैंक रेट की इंक्रीज करने की. ना ये बैंक रेट क्या है, इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में. Now the bank rate is increased. Then second it comes is the sale of the गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट. नाउ इसी को जो है क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है. द नेक्स्ट कम्स इज दी हायर कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. कल हमने बात की थी. सी माने सेंट्रल बैंक के पास जो पैसा रखना होता है. नाउ एस माने जो कि आपका कमर्शियल बैंक के पास रखना होता है. याद रखो, स्टेट एस से एसबीआई की तरह एटसेट्रा, कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा रखना होता है. नाउ फोर्थ कम इज योर कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल. देन फिफ्थ कम इज दी हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट. रेपो रेट को बढ़ा दो, हाई कर दो, वेरेज रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को हाई कर दो. नाउ रिमेंबर, ये दो जो हैं अगर हम इनकी बात करें, ये रेपो रेट, व्हाट इज द रिवर्स रेपो रेट, what is the bank rate, we would be dealing with them in the next chapter जो कि banking है, in the detail. Now second, here the second comes is the fiscal measures. देखते हैं. Now fiscal measures, if we talk about the fiscal policy is now recognized as an important instrument टू टैकल द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन. महंगाई में सबसे जो पहला दायित्व होता है वो सरकार का होता है. द बर्डन इज ऑफ द गवर्नमेंट, रिमेंबर दैट, एंड द फिस्कल मेजर्स दे आर कंसर्न्ड विद द गवर्नमेंट. द मेजर्स, द मेजर एंटी इन्फ्लेशनरी फिस्कल मेजर्स आर फॉलोइंग. नंबर 1, सबसे पहली चीज सरकार क्या करेगी? अपना खर्चा कम करेगी. इट विल रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर.
Now, in the COVID-19 situation, you have seen that in the recent parliament session during the COVID-19, so the government has passed, or the in the parliament, the government has put up a bill reducing salaries of a certain person. Now, MP led fund, it has been stopped, and that's why a question was in the 2020 prelims on the MP led fund. So MP led fund पर 2020 के prelims में क्वेश्चन भी आया था इसीलिए. नाउ नेक्स्ट, पब्लिक बोरोइंग कम करनी पड़ेगी, एनहेंसिंग दी टैक्स. सो ज्यादा पैसा चाहिए गवर्नमेंट को तो वो टैक्स बढ़ा देगी. नाउ नेक्स्ट कम्स इज दैट दी अदर मेजर्स. Now, what are these other measures? Short-term measures can be regarded to the public distribution of the scarce essential commodity. So, if we talk about थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, तो वी कैन से दैट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कार्स एसेंशियल कमोडिटी. और कैसे? फेयर प्राइस शॉप के थ्रू, राशनिंग के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्राइस ऑफ द ऑनियन राइजेज, यू विल सी दैट द गवर्नमेंट स्टार्टेड सेलिंग द ऑनियन. सरकार जो है खुद जो है प्याज बेचना स्टार्ट कर देती है. स्पेशली if I give you the example is the अरविंद केजरीवाल. ना उनकी जब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्या किया था, दिल्ली में ऑनियंस जो है वो बेच रहे थे. सो दैट वाज द a fair price shop, we can say that. In India, whenever the shortage of the basic good has been felt, the government has restored to the import so that the inflation may not get triggered. So एक और तरीका है, that is restoring to your import. So import का भी एक जरिया जो है सरकारें ले सकती हैं, they can take this also. Now in the other, so this slide is same, I think. Sorry. Sorry. Okay, that was the short term. Now if other measures, the long term measures are, now long term measure, it require accelerating the economic growth, especially on the wage goods, now which have the direct bearing on the general price and the cost of the living. So now in the today's news you have heard that the bonus would be provided to the central government employees. Now such type of the things government comes up. मंदी को जो है, ये अभी तो मंदी की सिचुएशन है, इन्फ्लेशन में जो है the government will focus on the wage goods, now which have the direct bearing on the general price and the cost of the living. Now some restriction on the present consumption may help in improving the saving investment, which may necessary for the accelerating the rate of the economic growth in the long run. अगर मान लो आपकी इकोनॉमी स्लो हो गई है, अब उसकी भी स्पीड बनानी है, then few measures have to be taken by the government. गवर्नमेंट को इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे और पैकेज, रिलीफ पैकेज के साथ जो है आना पड़ेगा. नाउ जीडीपी जो है हमारी नहीं, बाकी सब कंट्रीज के उस पर इफेक्ट पड़ा है. नाउ ड्यू टू विच द गवर्नमेंट हैव कम अप विद द न्यू प्लान एंड द पॉलिसीज. नाउ अभी एक नई स्कीम और लॉन्च होने वाली है. आई होप दैट इस वीक वो लॉन्च होने वाली है. इट वाज इन द न्यूज एंड दैट इज अबाउट दोज पर्सन जो ठेली रेडी वाले हैं, जो स्ट्रीट वर्कर्स हैं. नाउ वो बिना किसी कोलेट्रल के, मतलब कुछ जमा किए हुए, वो 10,000 रुपए जो है दे कैन टेक एज अ लोन. सॉरी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी वुड बी मूविंग टूवर्ड्स द मीनिंग ऑफ द डिफ्लेशन, disinflation and stagflation. Now we have studied the topic of the inflation. Next we would be studying the related terms. What do you mean by deflation? What do you mean by disinflation? And what do you mean by the stagflation? First we would be going to study about the deflation. Now the essential feature
ऑफ द डिफ्लेशन इज फॉलिंग प्राइसेस। नाउ डिफ्लेशन में क्या होगा, प्राइस गिर जाएंगे, मूल्य गिर जाएगा। नाउ रिड्यूस्ड मनी सप्लाई, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। इसको हिंदी में हम बोलें डिफ्लेशन को तो मंदी का जो है दौर आ जाएगा एंड बहुत ज्यादा जॉब जाएंगी। नाउ कोविड के सिचुएशन में अभी क्या हो रहा है, आपका कुछ कमोडिटीज के प्राइस जो है वो राइज करें, वेयर एज द जनरल सिचुएशन इज ऑफ द डिफ्लेशन। वो कैसे डिफ्लेशन के, बिकॉज द प्राइसेस आर नॉट फॉलिंग। रिमेंबर ये नहीं हो रहा है, बट द कंडीशन दैट इज द मनी सप्लाई इज लेस, देन अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर इज मोर, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। Now, though the falling prices are desirable at the time of the inflation, now such a fall should not lead to the fall in the level of the production and the employment. Now, but if the prices fall from the level of the full employment, now both income and the employment will be adversely affected. Now, अगर मान लो क्या हो रहा है कि if the जो प्राइस है वो फॉल कर रहा है फ्रॉम द लेवल ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट, हमने जो है चैप्टर पढ़ा है अनएम्प्लॉयमेंट का और द चैप्टर वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। नाउ फुल कैपेसिटी है, उससे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। बोथ द इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट वो अफेक्ट करेगी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द डिसइंफ्लेशन? नाउ डिसइंफ्लेशन इज द slowing down of the rate of the inflation by controlling the amount of the credit. It means जो महंगाई है उसको कम करने की जो है गवर्नमेंट जो है कुछ क्रेडिट के थ्रू लोन प्रोवाइड करके जो है उस महंगाई को कम करने की कोशिश कर रही है। Now what are the measures under this amount of the credit? It amounts to your the bank loan and the hire purchase available to the customers or the consumers without causing more unemployment. मान लो मार्केट में मंदी है, पैसा कम है और महंगाई बहुत ज्यादा है, सो पैसा डाल देंगे, अल्टीमेटली जो पैसा दे देंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे चीप रेट पे, हायर परचेज की सिचुएशन होगी एंड दैट विल लीड टू द कमिंग बैक ऑफ द इकोनॉमी ऑन द ट्रैक. Now, disinflation may be defined as the process of reversing inflation without creating unemployment or reducing the output in the economy. Now, एक तो तरीका है कि महंगाई को कम करने का कि छटनी कर दो, कि आपको सैलरी ज्यादा लोगों को देनी पड़ रही है, कंपनी क्या करेगी, उनको निकाल देगी. दूसरा तरीका क्या है, क्रेडिट प्रोवाइड कर दो, कंपनियों को लोन दे दो, कंपनियां ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी. अल्टीमेटली इन्फ्लेशन, महंगाई किस कारण थी, एग्रीकल्चर वाला जो इन्फ्लेशन है वो अलग सिनेरियो. फॉर एग्जांपल किसी कॉमोडिटी की कमी की वजह से जो इन्फ्लेशन हो रहा है, इन दैट सिनेरियो व्हाट वी कैन डू इज दैट कि हम ये कर सकते हैं कि हम जो है लोन प्रोवाइड कर देंगे और जो कंपनियां लोन लेंगी ज्यादा हायरिंग करेंगी, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी. नाउ इमेजिन वन मोर सिचुएशन, मान लो अगर फूड क्रॉप में जो है इन्फ्लेशन है, टॉप टमाटो, ओनियन एंड द पोटैटो की वजह से इन्फ्लेशन है. व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू, गवर्नमेंट कैन इंपोर्ट दीज फ्रॉम द अदर कंट्रीज. सो कुछ हद तक जो है जो हमारी महंगाई है उसको कम किया जा सकता है, तो उसको हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं इंपोर्ट के थ्रू भी. नाउ नेक्स्ट कम्स इज द स्टैगफ्लेशन. नाउ स्टैगफ्लेशन एक कॉम्बिनेशन है स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन का. सो इस सिचुएशन में आपको तीनों चीज देखने को मिलेंगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ वो स्टैग्नेंट हो गई है, इसी समय जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हाई है, इन्फ्लेशन भी हाई है, और वी कैन से वी आर नॉट इन ए स्टैगफ्लेशन, इतनी महंगाई नहीं है, बट नॉर्मल कॉमोडिटीज, कुछ ही कॉमोडिटीज है जिनके प्राइस राइज कर रहे हैं, एंड वो भी इट इज ड्यू टू दी कोविड के कारण है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के कारण है. नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज द ट्रेड साइकिल. जो हमें पढ़ना है वो है ट्रेड साइकिल. नाउ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी will have its periodic ups and downs. So
capitalist economy. Now remember that we have studied about the capitalism in the first class. So what we have studied about the capitalism, that all the things are privately controlled. Now what I mean by privately controlled, I mean that privately controlled means that the market forces are controlling. Now, what are the aim of the capitalist economy? Is the profit maximization. And what type of the product they are making? They are making the product which are giving them the profit. वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो उनको प्रॉफिट देंगे. either it is a sin good, means either it is a bad good, it does not matter, but if it is providing them, अगर वो आर्म्स एम्यूनेशन बना रहे हैं, चाहे उससे लोगों की जान जा रही हो, चाहे उससे वॉर हो रही हो. अभी जो है वॉर चल रही है अर्मेनिया के और उसके दूसरी कंट्री के बीच में. सो आर्म्स एंड एम्यूनेशन की जो है ये, क्योंकि मार्केट स्लो हो जाती है, आपका आर्म्स और एम्यूनेशन कोई खरीदे भी तो. सो ये लोग क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन बनाए रखते हैं कि इनकी इंडस्ट्री चलती रहे. एंड इन दिस सिचुएशन यू हैव हर्ड दैट द in such type of the situation only the Marx was against of that, and Marx comes up with his own ideology that he calls as the socialism. मार्क्स अपने ही एक आइडियोलॉजी के साथ आता है और उसको सोशलिज्म और बोलता है कि इक्वलिटी, वेलफेयर स्टेट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, वेलफेयर होना चाहिए. नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ आई टोल्ड यू कि अब आर्म्स एंड एम्यूनेशन, लड़ाइयाँ होंगी नहीं. अगर इंडिया पाकिस्तान जो है दोस्त बन जाएं, लड़ाइयाँ होंगी ही नहीं. आर्म्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जो सेना पे खर्चा हो रहा है, आर्मी पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो नहीं होगा. बट जब तक ये रहेगी हम आर्म्स खरीदेंगे. किसको फायदा होगा? यूएस को फायदा होगा, इजराइल को फायदा होगा, क्योंकि हम वहां से वेपन बाय कर रहे हैं. फायदा किसको होगा? फायदा होगा रशिया को, फायदा होगा फ्रांस को, फायदा होगा. राफेल खरीदा है हमने. क्यों? क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि कश्मीर का जो मुद्दा है वो सॉल्व हो. एंड अगर मान लो सॉल्व हो गया तो क्या हो जाएगा कि डाउन आ जाएगी, इनकी सेल नहीं होगी, इनके जो वेपन है वो नहीं बिकेंगे. और फिर एक टाइम ऐसा आएगा दोबारा कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा, उसको फिर से बिकना स्टार्ट हो जाएंगे. तो उनके बिजनेस में जो है अपवर्ड मूवमेंट भी हो रही है, देन एक समय डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो रही है. So the study of the ups and the downs, it is called as the study of the business cycle or the trade cycle or the industrial fluctuation. इस पढ़ाई को कि कब ये जो है बढ़ रहा है, कब ये डाउन जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम? We call it as the business cycle, trade cycle or industrial fluctuation. Now what do you mean by the meaning of the trade cycle? Now trade cycle refers to the oscillations of the in aggregate economic activity, particularly in the employment, output, income. Now आपने एक पेंडुलम वाली क्लॉक देखी होगी. तो पेंडुलम goes like this, so it is up, it is down. So such type of this scenario. Now it is due to the inherent contraction and the expansion of the elements. Now they have used the technical language in the second line. दूसरी लाइन में technical language में लिख दिया है कि क्या है ये inherent है. क्या है inherent? contraction और expansion होना. मतलब कि एक बार बिजनेस का सुकड़ जाना और एक बार बिजनेस का बढ़ जाना. of the elements which energize the economic activity of a nation. Now there was a video which I was watching today. So all of the people, they say that these countries, these third world countries, they are poor countries and they are barbarians and so and so. Now but that person, he was a political scientist and he was talking about that a nation is not poor, means a country is not poor.
For example, the South Indian, South African or the African countries, they are not poor, but ultimately who is the poor? The people of that country are poor. So there is a difference between the being a country being a poor and the people of that country being a poor. ये दोनों अलग अलग चीज हैं. एक तो उस देश के लोग गरीब हों, और दूसरा मैं कहूं कि देश गरीब है. देश गरीब नहीं है, बट लोग जो उस देश में रह रहे हैं वो गरीब हैं. And ultimately why they are poor? They are poor because they have been exploited by these people, these capitalist economies. Who are these capitalist economies? These capitalist economies are the USA, European nations, because they are extracting the raw product or they are extracting labor. सो फ्रॉम द ईयर्स बैक वो वहां से लेबर मतलब कि स्लेव्स लेके आते थे. हमारे यहाँ से इंडिया से रॉ मटेरियल कॉटन लेके जाते थे. भारत सोने की चिड़िया था, पर क्यों? क्योंकि इन्होंने फायदा उठाया, एंड विद डेट मनी दे बिकेम द रिच, एंड वेयर एज सो दोज नेशन बिकेम द रिच एंड दीज नेशन बिकेम द पुअर. फॉर एग्जाम्पल वही सेम चीज है जो एक बड़ा आदमी जो है दूसरे को कुचल के जो है अमीर बन जाता है गरीब आदमी को. सो देयर मे बी दी अदर रीजंस ऑल्सो कि वो देश काम ही नहीं कर रहा है, उस देश के लोग मेहनती नहीं है, वो एक अदर रीजन हो जाता है, बट अल्टीमेटली दिस इज द रीजन. So I was trying to explain you about the fluctuation of the business is called as the a trade cycle. There may be up and there may be downs. Now the fluctuations are the periodical, differing in the intensity and changing in its coverage. So जो फ्लक्चुएशन है वो कैसा होगा? पीरियोडिकल होगा. वो डिफर करेगा इंटेंसिटी में एंड चेंज करेगा उसकी कवरेज को लेके कि भाई वो कितना उसका कवरेज है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन दैट हैव बीन गिवन बाय द जेएम कीन्स, तो जेएम कीन्स क्या कहते हैं इस दिशा में? सो लेट अस सी दैट. नाउ अ ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ द पीरियड्स ऑफ द गुड ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइसेस and low unemployment. So a trade cycle, it is composed of periods of the good trade characterized by rising prices and low unemployment. So price बढ़ गए हैं, commodity के employment कम है, low unemployment है, and percentages altering with the period of bad trade characterized by falling prices and high unemployment percentage. Now यहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो दो चीजों के बारे में बात कर रहा है. Now you also have to comprehend the passages. So कोशिश करा करो कि इनमें से निकालने की. तो पहली चीज क्या कह रहा है कि राइज हो रहा है. किस में राइज हो रहा है? प्राइस में राइज हो रहा है. एंड सेकेंड लो है, कम है. क्या? राइज ऑफ द प्राइस एंड द लो ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट. तो इसको इसने कह दिया कि गुड ट्रेड हो रही है, अच्छी ट्रेड हो रही है, पैसा बन रहा है. और एक दूसरा बोला कि प्राइस कम हो गया और जो नौकरियां जो हैं कम हैं, तो मोर अनएम्प्लॉयमेंट, लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं. सो डेट ही कॉल्ड एज दी बैड ट्रेड. ना इसी तरह से आपको नोट्स बनाने हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है और आपको जो है लास्ट में प्रीलिम से पहले समझना है. ये पढ़ने में आपका माइंड कभी भी नहीं पढ़ेगा इस पैराग्राफ को. योर माइंड विल नॉट रीड दिस पैराग्राफ, बट इफ यू हैव रिटन इन दिस फॉर्म like the rise in the price, then the low, that is the unemployment, is good trade, whereas the low price and the high unemployment is bad trade, and that in the terms of the percentage is called as the trade cycle as stated by the James Keynes, John Maynard Keynes. So what I am telling, what I am trying to say is that you don't have to quote such type of the statement directly in your mains exam में. आपको ऐसे ही कि ऐसे as it is word to word नहीं लिखनी है.
बट जर्नल आप ये चीज भी लिख सकते हो अगर आपने समझ ली, और आसानी से आप समझ पाओगे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इस चीज को। नाउ मीनिंग ऑफ द ट्रेड साइकिल, द 4 डिफरेंट फेजेस ऑफ द ट्रेड साइकिल इज रेफर्ड एज, ट्रेड साइकिल में 4 दौर आते हैं, जैसे 4 सीजन होते हैं वैसे ही जो ट्रेड साइकिल होते हैं उसके भी 4 साइकिल और द 4 सीजन होते हैं। These words are very important. In the earlier classes, I told you that I would be explaining these words later on. जब मैंने पहले क्लासेस ली थी तो मैंने उसमें बताया था कि जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको वेट करो, धीरे धीरे सारे वर्ड्स आपके कवर हो जाएंगे। Now boom, recession, depression and recovery. Now don't confuse with disinflation. And these there would be some words that would be similar or this similar sounding words. Don't confuse with that. Be clear with these words. Now these are the phases of the trade cycle. Now you see in the first level you will see that this is a recession, then you will reach to a position that is called as the depression. Now depression means कि मंदी हो गई है, whereas boom आपकी चांदी हो गई है। हिंदी में बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में कि भाई एक तो मंदी हो गई है, एक चांदी हो गई है। तो मंदी मतलब कि प्राइस जो है आपका मतलब बिजनेस जो है डूब गया, और चांदी हो गई तो बूम हो गया। एंड ये जो बीच वाला वो रिसेशन हो रहा है, ये रिकवरी का समय है। देन ऑल इट्स गोइंग टू द रिसेशन, देन अगेन कमिंग बैक टू द बूम। सो दिस इज अ साइकिल। नाउ इफ यू लर्न दिस टाइप ऑफ द ग्राफ्स एंड इफ यू मेक देम ऑन योर मेंस के एग्जाम में, यू विल गेट एन अपर एज। आपको बाकी विद्यार्थियों से ज्यादा जो है यहां पर अंक मिलेंगे, अंक प्राप्त होंगे। नाउ फर्स्ट वी विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट द बूम और द प्रोस्पेरिटी फेज। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ प्रोस्पेरिटी, prosperous. Now the full employment and the movement of the economy. What is their full employment? And what is happening? Movement of the economy beyond full employment is characterized as the boom period. Now इस पीरियड में क्या होता है? There is hectic activity in the economy. बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है इकोनॉमी में, बहुत ज्यादा काम है। Now money wages rise, profit increase. So वेज जो है तनख्वाह बढ़ जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। फिर से कह रहा हूं, आपकी तनख्वाह बढ़ गई, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, और जो डिविडेंड जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ गए। तो बैंक को फायदा हुआ, कंपनी को फायदा हुआ, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी फायदा हुआ। नाउ डिमांड ऑफ द बैंक क्रेडिट इंक्रीजेस, मतलब कि आपको के पास ज्यादा काम है तो आप क्या करोगे? पैसा नहीं है, बैंक के पास जाओगे, बोलोगे मेरे को पैसा दो। सो बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, और क्रेडिट की मांग ज्यादा है इसलिए। एंड देयर इज एन ऑल राउंड ऑप्टिमिज्म, मतलब ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद। आशावाद हिंदी में आशावाद बोलते हैं। जो ये जिनमें आईएसएम लग जाता है ना, उनका मतलब होता है वाद, वो एक जो फिलोसॉफी बन जाती है। जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, आशावाद आशावादी लोग बोलते हैं उनको ना, पॉजिटिविटी से बिलोंग करता है ये। वैसे ही आपका होता है गांधीज्म। सो गांधी के बारे में पढ़ना, अबाउट द फिलोसॉफी ऑफ द गांधीवाद। नाउ नेक्स्ट कम्स इज द रिसेशन। बूम मतलब चांदी हो गई, किसकी हो गई? एक जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो जिसकी कंपनी है, और बैंक वालों की भी, सबकी जो है यहाँ पर मजे हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द बूम कंडीशन इज कॉल्ड रिसेशन। सो अगर ये जो बूम का ऑपोजिट पूछ लें आपसे या एंटोनिम पूछ ले, तो डेट वुड बी द रिसेशन। नाउ दिस हैपेंस टू द हायर रेट देन व्हाट वाज अर्लियर। Now generally the failure of the company or the bank bursts the boom and brings the face of the recession. Now investment are drastically reduced. यहाँ पर क्या होगा? आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट खींच ली जाएंगी, घट जाएगी। प्रोडक्शन मतलब कि
आपसे कोई काम ले ही नहीं रहा है, आपकी प्रोडक्शन कम हो गई, इनकम कम हो गई, प्रॉफिट कम हो गई। नाउ अब आपको जो है लास्ट में मैं बना के दिखाऊंगा चार्ट, कैसे आपको चार्ट बनाना है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ चार्ट कैसे बनाना है। आपको लिखोगे यहाँ पर बूम लिखोगे। आप बूम में क्या लिखोगे कि एक वर्कर जो है उसकी जो है पैसे बढ़ गए, एक जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया, और देन उसके अलावा एक चीज और थी, दैट इज वाज द प्रॉफिट बढ़ गए, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। सो यहीं पर लिख लो लोन जो है वो बढ़ गए। सो सेम वे राइट द अदर थिंग ऑल्सो। क्या लिखोगे, रिसेशन में क्या हुआ, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द रिसेशन, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया, और आपका प्रॉफिट और द इनकम कम हो गई। सो वर्कर की यहाँ पे हम इनकम लिखनी थी हमें यहाँ पर। सो यहाँ पे क्या लिखोगे, इनकम कम हो गई, वेर एज इंटरेस्ट का क्या होगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, वेर एज प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा, लोन क्या होगा, कम होगा। यहीं पर एक चीज और ऐड कर लेना, प्रोडक्शन क्या होगी, वो भी कम होगी। तो इस तरह से इन 4 लाइन्स योर ट्रेड साइकिल इज कंप्लीट। 4 लाइनों में ट्रेड साइकिल खत्म। रिवीजन करने में आधा मिनट लगेगा। सो डू मेक नोट्स लाइक दिस। अगर मैं बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, सर ये क्या है, ये क्या साइन लगा है, ये नीचे क्यों जा रहा है, ये ऊपर क्यों जा रहा है। अगर आप खुद बनाओगे तो आपको याद रहेगा, समझ आएगा कि आपके क्या इनिशियल्स क्या है, इनको इनिशियल्स बोलते हैं। Now next comes is the depression. Okay, we will study that. Now this is a panic in the stock market. Business activity shows signs of the dullness. Now liquidity preference of the people rises. Money market जो है वो टाइट हो जाती है। Now next is the, we would be going to study about the depression. Now what will happen in the condition of the depression में क्या होगा। Now during the depression the level of the economic activity it becomes extremely low. Word देखो, word selective word, extremely low. Economic activity बहुत कम हो गई। Now firms incur loss, closure of the business becomes a common feature. And the ultimate result is unemployment. Now for example 8 महीने से सिनेमा बंद थे। Now अब क्या करेगा वो बंदा, उसको तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो लो हो गई थी। सिनेमा का जो मालिक है 8 महीने से किराया दे रहा। और वी कैन टेक द कंडीशन ऑफ द ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स। ना उन्होंने जो है लगभग उनका मान लो 50 लाख महीने का किराया जा रहा था हॉल्स का। ना 50 लाख इंटू 8, सो इतना जो है इनका ये पूरा जो है पैसा जो है अब इनको 8 महीने देना है। अभी भी नहीं खुले हैं, बच्चे आएंगे नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा। अल्टीमेटली प्रॉफिट गिर गया, बट उन्होंने 1 साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। अब ये तो मजबूर हो जाएंगे, उसको बोलेंगे भाई तू एडवांस ले ले, तू जो है साल का 30 लाख ले ले और जो है खत्म कर। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे या कुछ ना और कुछ करेंगे, बिजनेस जो है उनका अल्टीमेटली बंद हो जाएगा। इंटरेस्ट, प्राइजेस, प्रॉफिट, वेज आर लो। सो आप उसी टेबल में नीचे लिख देना, इंटरेस्ट इसमें भी कम होगा, डिप्रेशन में प्रॉफिट कम होगा, वेजेस कम होगी। द एग्रीकल्चरल क्लास वेज अर्नर्स विल बी वर्स्ट हर्ट। नाउ यूपीएससी आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि डिप्रेशन की सिचुएशन है, एक एग्रीकल्चर वाले बच्चे, एक एग्रीकल्चर क्लास को क्या फर्क पड़ेगा। वो आपसे पूछेगा इंटरेस्ट पर क्या फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट पे फर्क क्या पड़ेगा। ये आपको स्टेटमेंट देगा कि प्रॉफिट वुड बी लो, वहीं पे लिख देगा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। बट जब तक आपने ये चार्ट बना के नहीं पढ़ोगे आपको याद ही नहीं रहेगा एग्जाम में क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। ये तो जो है ना, ये काले अक्षर जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये भैंस के बराबर दिखेंगे एग्जाम में। वो ये डी यहाँ दिखेगा, ये ई यहाँ दिखेगा, पी यहाँ पे दिखेगा, एग्जाम में ऐसा ही होता है। बट अल्टीमेटली अगर आपने, इफ यू हैव स्टडीड थ्रू दी चार्ट फॉर्म में
नोट्स बना के शॉर्ट शॉर्ट बना के रखे हुए हैं, तो वो चार्ट याद आ जाता है, वो टिक्स याद आ जाते हैं, वो जो आपने टिक लगाया या फिर आपने नीचे करके एरो लगाया वो याद रहता है. Now, banking institutions will be reluctant to advance loans to the businessman. Now, depression is the worst phase of the business cycle. Remember that. Okay. Now, आगे क्या होगा? एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ डिप्रेशन, उसको हम ट्रो बोलेंगे. ट्रो मतलब कि वो नीचे वाला सिचुएशन है, उसको ट्रफ बोलते हैं, ट्रो. नाउ बिकॉज इट इज द डीप पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल, एनी पर्सन फेल डाउन इन द डीप्स कुड नॉट कम आउट फ्रॉम द डेट विदाउट अदर हेल्प. अगर आप बात सुनोगे कोचिंग वालों से, वो ये कह रहे हैं कि अगर ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता, टेक्नोलॉजी नहीं होती, 4G नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल लोगों के पास 2G होता और लॉकडाउन हो जाता, तो क्या हाल होता, क्या जरिया होता पढ़ने का? तो फोन कॉल होती, फोन कॉल भी इतनी अच्छी नहीं है, कॉल कट जाती है, तो लोग कैसे पढ़ पाते? अल्टीमेटली इफेक्ट तो स्टूडेंट पे पड़ता ही पड़ता, बट द वर्स्ट हिट वुड बी दीज बिजनेस, दैट इज द ऑफलाइन कोचिंग सेंटर, तो उनका बहुत बुरा हाल होता. नाउ सिमिलरली वो क्या है, उनको अगले 10 साल लग जाते उभरने में, इतना उनको जो है घाटा हो जाता. जो उन्होंने पिछले 10 साल में कमाया होगा वो जो है एकदम से चला जाता. ऐसा सुना भी है मैंने, कुछ हैं कोचिंग सेंटर जो कि ये बोल रहे हैं कि उनको इतना जो है नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके पास जो है 200 होल्स थे. 200 होल का मतलब समझ लो आप कितना जो है उनका बिजनेस था. ना सिमिलरली एन इकोनॉमी फेल, और उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, टेबल है और सब चीजें हैं, और भी स्टाफ था, वो भी कितना अनएम्प्लॉयड हो गया है. ना एन इकोनॉमी फेल डाउन इनटू द ट्रो कुड नॉट कम आउट फ्रॉम दिस विदाउट एक्सटर्नल हेल्प. अब वही है ना, अब यू आर सीइंग दैट द गवर्नमेंट इज कमिंग विद एंड प्रोवाइडिंग द एक्सटर्नल हेल्प. कुछ MSME जो आपके वो हैं, उनको जो एक्सटर्नल हेल्प जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. Now, Keynes advocated that autonomous investment of the government alone can help the economy to come out of from the depression. Now, this inflation topic which we are studying, which we studied yesterday, which we are studying today, this can be asked in the 2020 prelims or the mains. 2021 आपके एग्जाम में, प्रीलिम्स में नहीं तो मेंस में पूछेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए. एग्जामिनर ये चाहता है कि आपको पता हो कि ये होता क्या है डिप्रेशन. अभी मनी सप्लाई पूछा था, उसने मनी सप्लाई इसीलिए पूछा कि बिकॉज द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू सप्लाई मोर मनी इन द मार्केट में. तो क्वेश्चन जो 2020 में आया था वो मनी सप्लाई से आया था. डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि कोविड क्या है, कोविड की डेफिनेशन बताओ, ये नहीं पूछेगा, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा और बेसिक बुक से पूछ रहा है. Now next comes is the recovery. Now after a period of the depression, recovery sets in. Now this is the turning point for the depression. क्या ये turning point है? किस चीज के लिए turning point है? Depression के लिए turning point है. To the revival towards the upswing. Now it begins with the revival of the demand for the capital good. Autonomous investment boost the activity. ना डिमांड जो है वो स्लोली पिकअप कर जाती है इन द ड्यू कोर्स में, एंड द एक्टिविटी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द अपस्विंग विद मोर प्रोडक्शन, प्रॉफिट, इनकम, वेजेस एंड द एम्प्लॉयमेंट. नाउ रिकवरी मे बी इनिशिएटेड बाय द इनोवेशन और द इन्वेस्टमेंट और बाय द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. Now this was all that we have to study about in this chapter. Now this was the 5th chapter, so I have wrongly marked it as the 4th one. So we have completed the 5th chapter. Now tomorrow we would be starting with the 6th chapter. Now I wanted to show you one more thing. Let me show you that also. The today's newspaper, आपको कैसे पढ़ना है newspaper, जो मैं आपको daily articles provide कर रहा हूँ. ना फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड एक जो है आज न्यूज़ में आया था. आपने सोचा होगा सर ने ये जो है ये आर्टिकल क्यों दिया है, क्योंकि ये तो न्यूजीलैंड के जो है कि इलेक्शंस के बारे में है. इट इज़ टॉकिंग अबाउट द इलेक्शंस ऑफ द न्यूजीलैंड, बट इट इज़ नॉट अबाउट द न्यूजीलैंड्स इलेक्शन, बट इट इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ द इलेक्शन इन द कोविड सिचुएशन दे वॉन दिस इलेक्शन,
एंड दैट पार्टी विच गॉट दी देयर आर 120 सीट्स, आपको दिखेगा यहाँ पर 120 सीट्स हैं उनके पार्लियामेंट में, और जिस पार्टी को, जो लेबर पार्टी है उनकी, उसको 64 सीट्स मिली हैं न्यूजीलैंड में, और अर्लियर उसको बहुत कम सीट मिली थी। दूसरा यहाँ पे आपको पॉलिटिकल PSIR से अगर हम बात करें तो आपको पता चलेगा कि कौन सा ये मॉडल यूज करते हैं। देखो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम यूज करते हैं। Now which gives assembly seat to the party winning more than the 5% vote in the 1996. Now इनका जो पहले था, basically this article it is all about that last year they got the 56, पहले इनको 56 सीट मिली थी, अब इनको 64 सीट मिली। कोविड में इन्होंने अच्छा काम किया होगा, तभी दोबारा जो है इनको चुना गया है। एंड अल्टीमेटली इनके यहाँ जो है देयर वॉज ऑल्सो द लॉकडाउन था, और बहुत हद तक लॉकडाउन था। सो यू कैन सी इन दिस लाइन दे आर सेइंग इट हैज बीन एलिमिनेटेड द कम्युनिटी ट्रांसमिशन बाय इम्पोजिंग द स्ट्रिक्ट लॉकडाउन्स एंड ब्रॉट बैक द रिलेटिव नॉर्मलसी बिफोर द इलेक्शन। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी लगाया और नॉर्मलसी भी लेके आए। वेयरएज इन्होंने वन ऑफ द लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड, देखो ये भी स्टेटमेंट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड, सो दैट वाज आल्सो देयर। नाउ आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट द इकोनॉमी। देयर वाज अ पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल यू हाउ देयर इकोनॉमी वाज इन द बर्डन। Now, what makes the Mr. Ardern victory significant is that her brand of the politics, socially liberal, economical, inclusive, and the politically democratic, have bucked the trend, conservative, and the anti-immigrant, and the. So this is not the line which I was talking about. Okay. Now she has also promised to alleviate the child poverty, fight the climate change, and the more vigorously. Now, in inclusive politics and the human approach coupled with the quick decision action and the tackle the crisis transformed her into the most popular New Zealand leader. Now, क्यों दोबारा जीती वो important है, because of the her decision, her quick decision action in tackling the COVID crisis. So that is the scenario you should be studying. That's why it was an article, or this is an editorial for the today that I have provided. इसी तरह से और भी आर्टिकल्स हैं आपको, I will be telling you about the article. For example, I have shared you this quad is very important. Quad बार बार न्यूज में आ रहा है, quad. So do read this quad.